Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 5 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल 1757 टू 1857 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone. Today we are going to study chapter 5 of social science. Chapter name is Impact of British Rule on India Economic, Social and Culture 1757 to 1857. तो हम लोग देखेंगे कि 1757 से 1857 तक ब्रिटिश जब हमारे यहाँ आए तो उनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से। So let's start to study this chapter. Around the 18th century, a number of significant events took place in the world. One such event was the Industrial Revolution, which took place in England. It gradually spread to other countries of Europe also. You must have read about the Industrial Revolution that took place in England and also read about the discovery of new sea and trade routes. One such sea route to India was discovered by a Portuguese called Vasco da Gama in 1498. As a result, the English, French, Portuguese, and the Dutch came to India for trade. They also used it to spread missionary activities in India. Do you know that the beginning of modern period in Indian history began with the coming of these European powers to India? In this lesson, you will be reading about the coming of the British to India and the impact it had on the economic, social, and cultural spheres as well. तो 18वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं पूरी दुनिया में, और इसमें से एक घटना है जो कि है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। और ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैली और दूसरे देशों में भी फैलना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बारे में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, तो आपने इससे डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, ट्रेड रूट्स, इन सब के बारे में पढ़ा, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया था। एक ऐसा ही समुद्री रास्ता है जो कि इंडिया के लिए खोजा गया था। पोर्टुगीज ने खोजा था इसे, जिनका नाम था वास्को ड गामा। 1498 में उन्होंने एक सी रूट को खोज निकाला। इसके परिणाम स्वरूप जो इंग्लिश थे या फ्रेंच, पोर्टुगीज और जो डच थे, वो इंडिया में आए व्यापार के उद्देश्य से, और उसे रास्ता को इन्होंने एक मिशनरी एक्टिविटीज के तहत पूरे देश में से फैला दिया, पूरी दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियड का शुरुआत है इंडियन हिस्ट्री में, वो कब हुआ था? जब यूरोपियन पावर्स हमारे भारत में आए, तब से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। इस लेसन में आप लोग ये पढ़ोगे कि जो ब्रिटिश आए थे जब भारत, तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारत पे, स्पेशली ऑन द व्यू ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। सो लेट्स मूव अहेड। Our topic is reasons for coming to India. हम लोग पहले देखेंगे कि जो ब्रिटिश आए थे उनका क्या कारण था कि वो हमारे इंडिया में आए थे, उनका रीजन हम लोग देखेंगे। The European and the British traders initially came to India for trading purposes. The Industrial Revolution in Britain led to the increase in demand for raw materials for the factories there. At the same time, they also required a market to sell their finished goods. India provided such a platform to Britain to fulfill all their needs. The 18th century was a period of internal power struggle in India, and with the declining power of the Mughal Empire, the British officials were provided with the perfect opportunity to establish their hold over Indian territory. They did this through numerous wars, forced treaties, annexations of and alliances with the various regional powers all over the country. Their new administrative and economic policies helped them consolidate their control over the country. Their land revenue policies helped them keep the poor farmers in check and get huge sums as revenues in return. They forced the
commercialization of agriculture with the growing of various cash crops and the raw materials for the industries in the Britain. With this strong political control, the British were able to monopolize the trade with India. They defeated their foreign rivals in trade so that there could be no competition. They monopolized the sale of all kinds of raw materials and bought these at low prices, whereas the Indian weavers had to buy them at exorbitant prices. Heavy duties were imposed on Indian goods entering Britain so as to protect their own industry. Various investments were made to improve the transport and communication system in the country to facilitate the easy transfer of raw materials from the farms to the port and of finished goods from the ports to the markets. Also, English education was introduced to create a class of educated Indians who would assist the British in ruling the country and strengthen their political authority. All these measures helped the British to establish, consolidate, and continue their rule over India. तो उनका जो मेन पर्पस था ब्रिटिश का इंडिया में आने का वो था ट्रेडिंग व्यापार के पर्पस से वो सबसे पहले जो यूरोपियन थे वो हमारे यहाँ आए थे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था इससे क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा तो हम लोग जब इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो क्या चाहिए ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए तो उस चीज का जो रॉ मटेरियल्स है उसका डिमांड बढ़ गया था फैक्ट्रीज के लिए और उसी टाइम उनके अपने जो उन्होंने प्रोडक्ट को तैयार किया उसके लिए भी मार्केट चाहिए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसे मैं सेल आउट कर सकूं तो इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ब्रिटेन वालों के लिए प्रोवाइड किया जिसमें उनके जितने भी बेसिक नीड्स थे जैसे कि रॉ मटेरियल्स को लेना या फिर जो अपना जो फिनिश्ड गुड्स है उनको सेल आउट करना तो ये इंडिया ने प्रोवाइड करवाया उन्हें 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक ऐसा पीरियड आया जिसमें जो इंटरनल पावर था वो स्ट्रगल कर रहा था भारत में भारतवासी आपस में ही अपने राज्य के लिए झगड़ा कर रहे थे और उस समय मुगल का जो साम्राज्य था उसका भी पतन हो रहा था वो भी डिक्लाइन कर रहा था और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला कि वो अपना जो चीज है यहाँ पे आके एस्टेब्लिश कर सके भारत के क्षेत्र पे उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े अपने फोर्स के साथ एंड बहुत सारे कैप्चर्स किए गठबंधन बनाए और हर एक क्षेत्र में उन्होंने युद्ध करा पूरे देश में और इससे एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसी को आने में यहाँ पे हेल्प मिला और वो आके धीरे धीरे हमारे ही कंट्री पे कंट्रोल कर लिए वहां पे लैंड रेवेन्यू लगाया गया पॉलिसी जिससे जो पुअर फार्मर्स थे उनके ऊपर उनकी नजर बनी रहती थी और वो उन फार्मर्स से बहुत सारे टैक्स एज अ ह्यूज अमाउंट वो गेन करते थे उन्होंने कमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर इसका मतलब क्या है कि वो जो भी एग्रीकल्चर करेंगे खेती करेंगे उस पे वो क्या करेंगे कैश क्रॉप एज अ कैश क्रॉप अपने क्रॉप्स को वो बेचेंगे जिसमें उनको क्या क्या लगाना होता था तो उन्हें वो गन्ना का खेती करवाते थे या फिर नील की खेती करवाते थे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैश क्रॉप्स थे और उनका जो रॉ मटेरियल्स था इंडस्ट्रीज के लिए वो भी वो वहीं से लेते थे हमारे इंडिया से उनका खुद का जो राजनीति था बहुत ज्यादा मजबूत था उनका राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था और जो ब्रिटिश थे वो भारत में अपने ट्रेड को मोनोपलाइज करने में एकदम पूरी तरह से कैपेबल हो चुके थे उन्होंने जो अदर फॉरेन राइवल्स जो अदर कंट्री से जो फॉरेन आते थे इंडिया में उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ा और ताकि वो लड़ाई जीत करके और यहाँ पे इंडिया में उनके कोई भी फॉरेनर राइवल्स ना हो कोई दुश्मन ना हो जिससे उनको कंपटीशन करना पड़े उन्होंने अपने सेल को भी मोनोपलाइज किया जितने भी प्रकार का रॉ मटेरियल्स था वो लो प्राइस पे बहुत ही कम दाम पे इंडियन से लेके जाते थे ठीक है और उसे वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्राइस में ब्रिटेन में बेच देते थे और इंडियन के जो सामान है हमारे जो सामान होते थे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे जिससे जो ब्रिटेन है उनका अपना इंडस्ट्री बचा रहे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स देखे गए जो जिसे इम्प्रूव किया गया जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव किया गया कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया जिससे कि जो भी रॉ मटेरियल्स है वो फार्म्स तक आराम से पहुंचाया जाए फार्म से पोर्ट तक और उनका जो फिनिश्ड गुड्स मीन जो अपना सामान लेके यहाँ पे आते थे वो पोर्ट से इजीली मार्केट्स में ट्रांसफर किया जाए पहुंचा दिया गया और जो इंग्लिश थे उन्होंने एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा महत्व दिया उसलिए उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जिससे एक एजुकेटेड क्लास का क्रिएशन हो सके जिसमें जो इंडियंस है वो एजुकेट हो करके ब्रिटिश को असिस्ट करे पूरे कंट्री में रूल करने के लिए अपने उनके पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए और जो भी चीजें थी जैसे कि ब्रिटिश ने अपने पावर को कंसोलिडेट किया और पूरी दुनिया पे रूल किया
Here is the figure of 5.1 the source currency used by the ईस्ट इंडिया कंपनी. जो करेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यूज की जाती थी वहां पे उस चीज का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है. एंड फिगर पॉइंट 2 में क्या है, करेंसी यूज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये भी सेम चीज है. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कोलोनाइजेशन इन इंडिया. अब उन्होंने भारत को किस प्रकार कोलोनाइज किया, तो हम लोग को उसका मेथड देखना है. Look at the map of Europe. You will find many big and small states on it. When this industrial revolution started in Europe, these small states did not have sufficient raw materials for their industries or markets for their finished goods. These countries now started looking for markets in Asia and Africa. England succeeded in controlling trade with India and established the East India Company in 1600. This company was supported by the British government. With its help, England was able to extend her territorial frontiers to the Indian subcontinent. The first factory was established at Surat in 1613. In 1615, Sir Thomas Roe got permission from the Mughal Emperor Jahangir to open more factories at Agra, Ahmedabad, and Braj. Their most important settlement on the southern coast was Madras, where they built a fortified factory called Fort St. George. This was the first proprietary holding acquired by the company on Indian soil. Gradually, the company expanded its trading network. By that time, the company was well established in India. It had also succeeded in eliminating the other rival European powers from India. They also started interfering in political affairs of Indian rulers. तो नीचे में एक यूरोप का जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे एक मैप बना हुआ है यूरोप का. इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स दिख रहे होंगे, कंट्रीज दिख रहे होंगे. ये यूरोप की है, ठीक है. तो ये जो मैप है उसमें आपको छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेट्स दिख रहे होंगे. जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था यूरोप में, वो छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है. और इनके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स नहीं था कि उनसे अपने इंडस्ट्री का नीड पूरी कर सके, और ना ही उनके पास अच्छी मार्केट थी कि वहां पे अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसको वो सेल आउट कर सके. सो ये जो देश वाले थे, ये जो कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया, मार्केट्स खोजना स्टार्ट किया कि कहाँ पे मुझे मार्केट मिलेगा और मैं अपने सामान को सेल आउट करूँ. तो उन्होंने मार्केट एशिया और अफ्रीका के रीजन में देखना स्टार्ट किया. और जो इंग्लैंड है वो ट्रेड करते हुए हमारे इंडिया पे कंट्रोल करने में सफल हो गए, और उन्होंने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की 1600 ईस्वी में. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्ट कब हुई थी हमारे देश में? 1600. और ये जो कंपनी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया था, और इसकी मदद से जो इंग्लैंड है वो अपना जो क्षेत्र है उसका भारत में बढ़ाना स्टार्ट कर देता है. और जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो सूरत में 1613 को स्थापित किया जाता है. और 1615 में जो सर थॉमस रॉ थे, उन्होंने मुगल के जो बादशाह थे उनसे परमिशन ग्रांट करवा लिया जहांगीर से कि वो और ज्यादा फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद और ब्रॉच में अपना खोल सके. और उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था वो था क्या, साउदर्न कोस्ट, जहाँ पे जो मद्रास है वो एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाता है, ठीक है. किलाबंदी वाला फैक्ट्री बनता है वहां पे, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया. और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था जिसमें वो कंपनी का जिसमें इंडियन सॉइल लगा था. और धीरे धीरे करके ये जो कंपनी है इसका जो ट्रेडिंग नेटवर्क है वो विस्तार ले लिया. और इस समय जो कंपनी था वो स्टैब्लिश हो चुका था इंडिया में. और ये जो अदर राइवल थे जो यहाँ पे आते थे ट्रेड करने, उनको जो यूरोपियन थे वो हरा दिए थे. और ये यूरोपियन तो पहले तो ट्रेड के पर्पज से आते, उसके बाद ये क्या करते, धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंडियन रूलर्स में वो जाके इंटरफेयर करने लगे. धीरे धीरे उसमें अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. Look at the map of the 19th century India. What do you see? You will locate many big and small independent states. These states had their own rulers, economy, language, and culture. These states were constantly at war with each other. It was not surprising that they fall an easy prey to the European powers, especially the British. It was the battles of Plassey 1757 and Buxar 1764 which provided the ground for the British success in India. Through these battles, a long era of British political control over India began. The Battle of Plassey was won by the English in Bengal.
The British made Mir Jafar the new Nawab of Bengal, in return for which they received an enormous sum of money as well as the territory of 24 parganas from the Nawab. But Mir Jafar was not able to make further payments to them. As a result, he was replaced by Mir Qasim, who proved to be a strong ruler. Mir Qasim was not ready to meet their demands for more money or control. As a result, Mir Qasim was removed and Mir Jafar was made the Nawab again. Mir Qasim then joined hands with the Nawab of Awadh, Sirajud-Dawla, and the Mughal Emperor Shah Alam. Look at this picture. This is the picture 5.4 स्विंग मैप ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया. ये 19th सेंचुरी इंडिया का पहले तो ये मैप है, ऐसे आप लोग देख लेना. ओके, तो ये जो हम लोग का जो 19th सेंचुरी का मैप बना हुआ, उसमें आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग इसमें इजीली देख पा रहे हो कि यहाँ पे छोटे और बड़े बहुत सारे स्मॉल और बिग जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं उनके खुद के रूलर थे, खुद का अपना इकोनॉमी चलता था, खुद का लैंग्वेज और कल्चर भी खुद का था. ठीक है, क्योंकि ये स्टेट इंडिपेंडेंट थे. ये जो स्टेट थे वो आपस में ही युद्ध कर रहे थे. और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये यूरोपियन जो पावर्स आए थे उनका ये इजीली शिकार बन चुके थे, क्योंकि इनमें खुद में एकता नहीं थी, ये खुद आपस में लड़ रहे थे. तो बाहर से जब कोई पावर आएगा तो वो इजीली कैप्चर कर लेगा. तो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने आके हम लोग को कैप्चर किया. प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था. बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो कि एक ग्राउंड दे दिया था, एक खुली मैदान दे दिया था कि जो ब्रिटिश आए और हमारे देश पे आराम से सफलता पा ली है. इस युद्ध की वजह से एक बहुत जो लंबा टाइम है जिसमें ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो इंडिया पे शुरू हो चुका था. जो बैटल ऑफ प्लासी है वो इंग्लिश वाले जीत गए थे बंगाल से, जो अंग्रेज थे वो जीत चुके थे. और जो ब्रिटिश थे वो मीर जाफर को बंगाल का एक नया नवाब घोषित करते हैं, और बदले में वो क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा लेते हैं और 24 परगना जो है वो नवाब से ले लेते हैं. लेकिन जो मीर जाफर है वो ज्यादा देर तक इस पेमेंट्स को कर नहीं पाते, मीन्स और ज्यादा पैसा नहीं दे पाते. इसके परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, मीर जाफर को गद्दी से हटा करके मीर कासिम को एक मजबूत रूलर के रूप में वहां पे स्थापित करते हैं. जो मीर कासिम है वो भी पैसे को देने में सक्षम नहीं हो पाए, वो भी ब्रिटिश की डिमांड्स को पूरा फुलफिल नहीं कर पाए. इसके परिणाम स्वरूप मीर जो कासिम थे उनको फिर से हटा दिया गया और उस गद्दी पे मीर जाफर को फिर से नवाब बंगाल का बना के बैठा दिया जाता है. फिर ये जो मीर कासिम थे उन्होंने अवध के नवाब से हाथ मिला लिया. अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला. और उन्होंने मुगल जो सम्राट थे शाह आलम, उनसे भी वो जाके मिल गए. कौन मिले? मीर कासिम मिल गए. ठीक है, Mir Qasim II. In plotting against the British, the battle took place at a place called Buxar on 22 October 1764. Their defeat proved to be decisive. और जो हमारे ये क्या हुआ कि एक प्लॉट मिल गया ब्रिटिश को, जिसमें बक्सर का युद्ध किया गया था 22 अक्टूबर 1764 में, और वो लोग हार गए इंडियन. Though the British successfully gained control over Bengal, the imposition of British rule throughout India was not an easy task. A number of regional powers opposed him and tried to resist the efforts of territorial expansion of the British. Let us read about the various wars waged by the British against the Indian states. तो जो ब्रिटिश थे वो इजीली वो बक्सर का युद्ध जीत के बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और जो ब्रिटिश रूल है वो पूरे इंडिया में फैल चुकी थी. और बहुत सारे जैसे रीजनल पावर्स है जो इस रूल को तो अपोज कर रहे थे और वो अपने मेहनत में भी लगे हुए थे. चलिए हम लोग ऐसे छोटे छोटे युद्ध के बारे में पढ़ते जो हमारे इंडियन स्टेट में ब्रिटिश के अगेंस्ट में हुआ था. Anglo-Mysore Wars. Mysore emerged as a powerful state under an able leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan in the second half of the 18th century. Four wars took place between Mysore and the British. Finally, the Fourth Anglo-Mysore War 1799 ended in the heroic defeat and the death of Tipu Sultan. With his glorious chapter of struggle between Mysore and the English came to an end. Large forts like Kanara, Coimbatore and Seringapatam was secured by the British. तो ये जो कुछ युद्ध है यहाँ पे कुछ वॉर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, तो उस वॉर्स के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. तो जो मैसूर है वो एक पावरफुल स्टेट के रूप में इमर्ज कर रहा था, और ये किसके लीडरशिप में था? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के अंदर में, और 18th सेंचुरी के हाफ तक. ठीक है, इसमें 4 युद्ध हुए मैसूर और ब्रिटिश के बीच में. फाइनली जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था 1799, उसमें जो टीपू सुल्तान थे वो हार गए और उनकी मृत्यु हो गई.
इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो संघर्ष था मैसूर और इंग्लिश में वाले लोग जो थे उनमें ये खत्म हो गया, क्योंकि ये लोग हार चुके थे और टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी, तो ये युद्ध खत्म हो चुका था। और बड़े बड़े पोर्ट्स जैसे कि कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम, ये सब ब्रिटिश के द्वारा ले लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। Anglo-Maratha Wars. The Marathas were another formidable power in western and central India during the second half of the 18th century. But the struggle for power among themselves gave the British an opportunity to intervene in their internal matters. Many wars took place between the British and the Marathas, mainly on account of the subsidiary alliance, which you will read in 5.2.1. The Third Anglo-Maratha War 1817-19 was the last war between them. The English defeated the Peshwa, dethroned him, and annexed all his territories. The Peshwa was pensioned off and sent to Bittur near Kanpur, उत्तर प्रदेश. तो जो मराठा थे वो क्या थे कि वो भी आपस में युद्ध कर रहे थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और इसमें वो अपने ही युद्ध में लगे हुए थे, लगातार वो आपस में ही युद्ध कर रहे थे। और जो वेस्टर्न जो पावर आया वो सेंट्रल इंडिया में, तो जो सेकंड हाफ सेंचुरी था, 18 सेंचुरी का जो सेकंड हाफ था, वहां तक सब लोग युद्ध कर रहे थे। लेकिन ये जो संघर्ष था वो आपस में ही कर रहे थे, इसके कारण ब्रिटिश वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वे उनकी इंटरनल मैटर में जाके इंटरफेयर करें। और बहुत सारे युद्ध हुए ब्रिटिश और मराठा के बीच में। मेनली हुआ था सब्सिडियरी अलायंस को मिला के। आप सब्सिडियरी अलायंस के बारे में सेक्शन 5.2.1 में पढ़ने वाले हो। तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1870-19 में, इससे क्या हुआ कि ये लास्ट वॉर था, ये लास्ट अंतिम युद्ध था ब्रिटिश और अ, मराठा के बीच में, ठीक है। और इंग्लिश जो था, जो इंग्लिश मतलब ब्रिटिश थे, वो क्या कि पेशवा को हरा देते हैं, उनको राजगद्दी से उतार देते हैं, और उनको जो जो भी राज्य का जो भी क्षेत्र था उसको वो लोग एनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और जो पेशवा है उनको पेंशन ऑफ कर दिया जाता है और उन्हें बिठूर नियर कानपुर उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है। Anglo-Sikh Wars. In northwest India, the Sikhs under their able leader Maharaja Ranjit Singh 1792-1839 became an effective political and military force. The British power in India viewed the rise of the Sikhs as a potential threat. The British thus wanted to bring the Sikhs under control. After the death of Ranjit Singh in 1839, lawlessness prevailed in Punjab. The British took advantage of this and the First Anglo-Sikh War broke out in 1845, which ended with the defeat of the Sikhs. In the Second Anglo-Sikh War in 1849, the British finally defeated them in the Battle of Gujarat, a town on River Chenab, 1849. The Sikh chief surrendered and Punjab was annexed by Lord Dalhousie. Maharaja Dalip Singh, the son of Maharaja Ranjit Singh, was pensioned off and sent to England. अब क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था जहाँ पे जो सिख था उसके भी बहुत अच्छे लीडर थे महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1829, और वो एक इफेक्टिव पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स के साथ वर्क कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश पावर जब इंडिया में आया तो उसने क्या देखा कि जो सिख है उसका जो पोटेंशियल थ्रेट है बहुत ज्यादा, मीन्स ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे कि सिख को अपने कंट्रोल में ले आए। और जब रंजीत सिंह जी महाराजा थे, उनका जब मृत्यु हुआ 1839 में, तो वहां पे पूरी तरह से जो कानून है वो बिखर चुका था, वहां पे कोई भी लॉ नहीं था पंजाब में। और जो ब्रिटिश है वो इस चीज का फायदा उठाते और पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845 में, जिससे जो सिख है वो तो हार गए। और सेकंड एंग्लो सिख जो वॉर हुआ था 1849 में, इसमें जो ब्रिटिश है फाइनली बैटल ऑफ गुजरात युद्ध किए, और उसमें जो टाउन था रिवर चेनाब के पास 1849 में, उसको वो एनेक्स कर देते हैं। जो सिख के जो चिफ्स थे उन्होंने पंजाब में अपना सरेंडर कर लिया, और जो पंजाब है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। महाराजा दलीप सिंह और जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनको हटा दिया गया और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। यहाँ पे फिगर दिया है महाराजा रंजीत सिंह का। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।